ओ गड्डी लेके रस्ते में, ओ सड़क पे एक मोड़ आया, तो एक दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, मैं एक दिल छोड़। This train, 22 noisy kids, moves swiftly towards Guwahati. These children are from Gujarat and Rajasthan. Some of them are travelling so far for the first time. Some of them are travelling in a train for the first time. मेरा नाम दिनेश है, मैं लांबड़िया गांव से आया हूँ। मेरा नाम विक्की, हम गुवाहाटी जा रहे हैं। वहाँ के लोगों को मिलने गाएंगे, नाचेंगे और उन लोगों का डांस हो वो भी सीखेंगे हम। These children will meet children and youth like them from parts of northeast India. They will meet children who have grown up amidst different conflicts. वहाँ जाकर लॉग करेंगे। लॉग यानी ये देखा जो देखा हो, जिस पे सोचा हो वो लिखने का। Imagine, just imagine if I were floating on this river. Along with its flow I flow, and lo and behold, the river reaches my village. Is this a river or is this a sea? Am I dreaming or is this Guwahati? मैं और तुम और मैं, हम सब मिलकर एक हैं। मैं और तुम और मैं, हम सब मिलकर एक हैं। आओ मिलके गाओ, जोर से पुकारो, सबको बताओ कि हम एक हैं। लड़कियां और लड़के, हम सब मिलकर एक हैं। लड़कियां और लड़के, हम सब मिलकर एक हैं। आओ मिलके गाओ, जोर से पुकारो, कि हमको बताओ कि हम एक हैं। आओ मिलके गाओ, सबको बताओ कि हम एक हैं। And Northeast India is what we call a galaxy of people. When you look at the skies, we find different types of stars. Northeast is something like that, different types of people. So that's why we find different tribes, different groups in this place. In the Northeast, we have various types of violence. We have got insurgent violence, people who are fighting against the government for separate land, separate state, separate country. So you have got this fight, for example, of the Greater Nagaland going on for the last 55 years. In Assam, you have the ULFA that is fighting for a separate country for Assam. So you have got insurgent violence. Together with insurgent violence, you have counter-insurgent violence. Because of all this, we have violence from the violent environment. People become aggressive because of all this violence that is going around. Those of us who live in the Northeast know very well that the violence in the Northeast is not going to come to an end in the next 50 years, minimum. Therefore, we began to turn our attention to the youth. और इस वजह से हमने युवाओं की ओर ध्यान देना शुरू किया। Can we prepare young people to live with violence without becoming violent themselves? So our aim was to build up the skills of young people whereby they can think of choosing peace even when there was a choice for using violence. Our strategy is, especially in peace education, is peer animation. That is, young people themselves begin to talk to other young people about the need for peace. And our message is, we accept our differences. We are different, but that does not have to lead us to fight with one another. We are different, but we don't have to threaten each other. Let us value our diversity. We have young people, maybe you will meet them tomorrow in Diffu, who, when the ethnic clash was going on, some of them said, our people are suffering, our villages are getting burned, we are angry, we are upset, but we will not take revenge. But there is one thing that I want to mention here, which I want you to understand very clearly. These stories, these kind of situations can look very frightful, and you will think the people here are very, very cruel.
but the fact is our people are very wonderful, hospitable people. The day they reach Deepu, it is closed. A band has been called. But as they enter Jisong Asong, things are very much open. 1, 2, 3, 4. Manunga tera dost, thoda sa ho. Manunga tera dost, thoda sa ho. जोर से manunga tera dost, thoda sa ho. Thoda sa, thoda sa, thoda sa ho. Manunga tera dost, thoda sa ho. Manunga tera dost, thoda sa ho. जोर से manunga tera dost, thoda sa ho. Thoda sa, thoda sa, thoda sa और That's it. Thank you. मेरा नाम अरुणा है और मैं गुजरात से आई हूँ। गुजरात से आया हूँ। गुजरात लांबड़िया गांव है, वहाँ खेड़ब्रह्मा तालुका में लांबड़िया गांव आया है, वहाँ से मैं आया हूँ। मेरा नाम नवीद अहमद है और मैं कराड़ा गांव से आया हूँ। तहसील खेरवाड़ा और जिला उदयपुर, यह सब राजस्थान में आता है। और मैं उजागर में 8 महीनों से आ रहा हूँ और वहाँ पर लॉग एक्टिविटी कंप्यूटर चलाते हैं, वहाँ पर अन्य क्रिएटिविटी और एक्टिविटी भी करते हैं। वहाँ पर कहानी भी पढ़ी जाती है और उस पर भी चर्चा की जाती है और फिल्म भी देखी जाती है। मैं डेचरा गांव का रहने वाला हूं, जो खेरवाड़ा तहसील में पड़ता है, राजस्थान में। और मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि घर में कोई लड़का और लड़की में भेदभाव करे। और हम हमेशा उजागर में जाते हैं, वहाँ पे महिलाओं की पहचान के ऊपर काम कर रहे हैं। मुझे यहाँ आसाम में आना बहुत अच्छा लगा। यहाँ का ये हरियाली है वो मुझे बहुत पसंद आई और मुझे तो लगता है कि मैं यहाँ 2-4 महीने और भी रह जाऊँ। मेरी नापसंद है कि कोई भी दंगा या मुस्लिम हिंदू का झगड़ा या कोई भी अत्याचार मुझे नापसंद है। और मेरी पसंद ये है कि सब शांति से हिल मिल कर रहे। मेरी नापसंद ये है कि मुझे डांटे, वो मेरी नापसंद है। मेरी पसंद ये है कि मुझे क्रिकेट खेलना। और हम गाड़ी में से नीचे उतरे वैसे ही तुम सब ने हमारा फूल से स्वागत किया। उसके बारे में आपको थैंक यू। साथियों सलाम है सलाम। So this is Peter and I come from Dibrugarh and also I'm representing NERIC, North Eastern Regional Youth Commission. हम दोस्तों से मिलकर अच्छा लगा कि ये लोग प्राभा के 2 लोग हैं। मैंने कुछ ही दिनों के बाद मैं प्राभा के अंडर U2 ट्रेनिंग करके आया हूँ। Thanks a lot, friends. We'll meet you later. Good afternoon to everybody. My name is Mercy Rongpipi and I'm working here with the organization called Sadakos and with the team Sadakos, and we are working for peace. Thank you. My name is Rebecca. I'm from Manipur and I am representing NERIC, and I love writing poems, singing, and of course dancing. And also I love traveling and meeting new people. And what I really dislike in my life, or what I really dislike in other people is people who always talk about, pass the message of egoism, like I only. I want people only to talk about us, we, or about love. Thank you. Okay, my name is Michael. I'm from Manipur. I came here because I was informed that many people from Gujarat will come. So I said to myself, okay, you are always here, but then you have never seen people from Gujarat. You always read about Narendra Modi, okay, everything. Why don't you go and see them in reality? So I came here. BULU.
So Bulu. Actually, let me say, it's a very interesting. Actually, my name is B-U-L. Bull, okay? So you all know what is bull? Bull का मतलब पता है कि नहीं? मगर ये हुआ क्या कि मेरा माँ के एक दोस्त थे, वो लड़की थे, ये बुलू इसे लड़की नाम, ओके? दिस इज गर्ल नेम. So मेरे माँ के जो एक दोस्त थे, she expired, she died. Then my mom thought that why not I add that U to my son, so that I can always remember her. So she added U. So ultimately I have to keep that U for my mother's sake. So my name become Bulu. They build peace with their songs. The songs break out into a conversation. They talk to the children about their experiences with violence, which has engulfed them for so long. When the violence affected my place, I was only 17 years, and the violence was so much with lots of killings that I began to develop a lot of fear against the two tribes who were in conflict. I began to lose trust in both the two tribes and a lot of hatred and anger for the two tribes. That was the main feelings that I have. Just अचानक रात को हो जाती है, एक तरफ से हल्ला गुल्ला होती है कि मारो मारो, और सब एक तरफ दौड़ पड़ते हैं. किसी का घर जल रहा है, आप बाहर निकल कर देखो तो किसका घर जल रहा है, किसका ये, और कहीं बच्चे रो रहे हैं, तो दूर दूर से सुनाई पड़ रहा है. फिर सुबह जाके देखें तो देखते ही मिलता है कोई जले हुए हैं, कटे हुए हैं, पड़े हुए हैं. My own family was very much affected because we were living in the conflicting zone. So my family has to stay out of that place where we are moved into a new place, and we have to adjust ourselves to the new place, and that affected me personally so much that I could not even continue my studies for about 2 years. Just एक विजिट के लिए मैं कोकराझार गया था. उस वक्त एथनिक क्लास वहाँ शुरू हुई थी. तो जब मैंने पहली बार देखा, मैंने जस्ट वहाँ से चले जाने के विचार आया और मैं वहीं जाने ही वाला था. और मैंने उसी दिन मैंने देखा एक बच्चे को वहाँ पे पड़ा हुआ है, बस में अटैक हो रहा है. मैं जिस बस में आ रहा था वहाँ से इधर घर, अपने घर, उस बस में अटैक हो गया. तो हम लोगों को कैंसिल करना पड़ा अपना प्रोग्राम. तो उस दिन मैंने सोचा कि अगर हम लोग यूँ ही भागते फिरेंगे मुसीबत से, तो इसका समाधान कभी नहीं हो पाएगा. It takes a lot of time. At first it was difficult to just forget everything that happened. Only when I began to think of that I wasn't the only person who was undergoing this trauma, when I began to think of the other people, and that forgetting this violence or forgetting what has been inside of me, the hatred, the anger, the fear that I felt, only then the door was open for me. तो मैंने सोचा मुझे कुछ करना चाहिए. मुझे भागने के अलावा, भागने के बजाय अगर मैं इनके लिए काम करूँ तो ये अच्छा होगा. I had a lot of feelings that peace could be made possible, and then with some exposures or orientation on this kind of peace programs or conflict resolution programs, I began to realize that the feelings or the thought that I had or the hope that I had that peace could be brought or a change could be made helped me to think of peace to be brought into my place practically. So that was the inspiration that makes me do it. मैं ऑक्सफैम इंडिया ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ, जो कि ऑक्सफैम जीपी ग्रेट ब्रिटेन का एक हिस्सा है. कोशिश ये है कि हम गरीबी और सफरिंग यानी हर तरह के दुख का सामना करने के लिए एक ताकत पैदा करें. Our main focus is on livelihood and NRM. तो जहाँ पे भी इंडस्ट्रीज है, क्योंकि ट्राइबल इकोनॉमिकली वो लोग एम्पावर्ड नहीं है, तो उनका हर एक जगह से गवर्नमेंट और दूसरे आर्थिक जूथों से भी एक्सप्लॉइटेशन होता रहता है. इन सब चीज़ों को रोकने के लिए और शांति बनाए रखने के लिए वो लोग अपनी जिंदगी आराम और शांति से जी सके, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं. Youth from one part of the country to meet the young from the other. It was meant to prepare the stage for a unique interaction. Here, such a big gathering has never happened before.
Can violence ever be justified? Listen to me, I will tell you. Where is my gun? Just you give me my gun. Listen to me. No, I will tell you. I won't listen anymore. See, we are. Look at my dirty assholes. I cannot bear anymore. I'll shoot them. I'll shoot them. I'll shoot you. Can there be a valid reason for violence sometimes? The children start to find out the difference between aggression, submission, and assertion. I'll push him out. If I am submissive, what will I do? या दे देते हैं या पूछते हैं. Saroj and Musir, they are from Rajasthan, and we three are from Difu. So we make a pledge to bring about peace by making ourselves understand the other person's point of view before coming to any final decision. Peace is not just the absence and destructive conflict, because the feeding of body, mind and spirit is about giving and receiving love. For an individual person to be truly at peace with her, himself, there needs to be harmony between this aspect, because building peace is the most urgent task in our time. They discover organic food at St. Joseph's School of Agriculture at Manja. The idea behind this farm is to bring youth from various warring tribes and make them learn the techniques of organic farming, as well as to learn to live peacefully together. Early morning, another adventure sprung up, flying to Agartala. इसका दिल में भी बहुत कुछ है बोलने के लिए, फिर भी वो बता नहीं सकता और दूसरे लोगों की तरह दुख भी प्रकाश नहीं कर सकता और सुख भी प्रकाश नहीं कर सकता। फिर भी मैं उसको समझ लेता हूँ, इसका पास बहुत बहुत सुख है और खुशी है, इसलिए मैं उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ राजस्थान की तरफ से और त्रिपुरा की तरफ से।
summer season, the range of temperature is from 24 degrees Celsius to 35 degrees Celsius. And in winter, it varies from 13 degrees Celsius to 27 degrees Celsius. The monsoon brings torrential rain that is from June to August. And the best time to visit in Tripura is from the month of September to March. हमारी एक्टिविटी होती है फिल्म एप्रिसिएशन, जिसमें हम लोग मूवी देखते हैं, जो मूवी बनी जाती है, हिंदी मूवी या डॉक्यूमेंट्री, कोई सी भी पिक्चर देखते हैं, और पिक्चर देखने के बाद हम लोग उस पर बात करते हैं कि उस मूवी में क्या था और किस तरह से, क्या सोच के डायरेक्टर ने वो मूवी बनाई है, कैसे किसी को प्रेजेंट किया, हिंदूज़ के बारे में क्या बोला है, मुस्लिम के बारे में क्या बोला है, एक लड़की के बारे में क्या बताया, लड़के के बारे में क्या बताया। करते हो बताओ ना। आप क्या करते हैं? हम तो करते हैं, सभी करते हैं। क्या करते हैं? बतख की चोंच होती है वो एरोप्लेन का चेहरा, और दो एरोप्लेन के कांच होते हैं वो दो आंखें होती हैं, और जो उसके बतख के पंख होते हैं वो एरोप्लेन का। आप किसको गुजरात में हुआ मालूम है ना क्या हुआ था? क्या हुआ था? क्या हुआ था? तुम्हारी वजह से हुआ। नहीं तुम्हारी वजह से हुआ। ये तुम्हारी वजह से हुआ। वो ट्रेन जीत के ठीक है। तो आप लोग ठीक है, हमने नहीं जलाई, तुम्हारे लोगों ने जलाई थी। तुम्हारे लोगों ने नहीं जलाई थी। हाँ तो तुम्हारे लोगों ने जलाई, बाद में हमारा लोगों ने सारा हल्ला किया। हमारे लोगों को नहीं मारा था। मानते हैं? क्या? ये जो बता रहे हैं कि पूरा दंगा यही लोग शुरू करते हैं और सारे ऐसे होते हैं, हाँ? दोनों की गलती से नहीं, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती। जब गलती दोनों की थी तभी कैसी गलती थी दोनों की बताओ? कैसी गलती थी? एक मिनट इनको बोलने दो, फिर आपका नंबर आए आप बोलने। गलती दोनों की तभी कुछ हुआ होगा। गलती दोनों की नहीं हो सकती, कुछ तो एक की है वो। कुछ ये पाना चाहते, उसमें से कुछ ये हाँ नहीं, कुछ फायदा पाना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे ही है, कुछ एक स्टेज पे रहते हैं वो लोग। तो एक ग्रुप का होता है या दोनों ग्रुप से ही ऐसे लोग होते हैं? दोनों ग्रुप से ऐसे होते हैं, वो लोग सिर्फ अपना कुर्सी चाहती है और सिर्फ अपना मतलब चाहती है। आप क्या बता रहे हैं? गुस्सा करेगा तो दोस्ती भी नहीं होगी। हाँ ठीक है, लेकिन ये अरे कोई बात नहीं, ऐसी दोस्ती चाहिए नहीं हमको इस मुस्लिमों के साथ। ठीक है। जो देशद्रोही होते हैं वही ऐसा करते हैं, जो देश प्रेमी होते हैं वो ऐसा नहीं करते। मतलब जो आम आदमी होते हैं वो इसमें फंस जाते हैं या वो भी, उसका भी कोई जिम्मेदारी है या वो कुछ कर सकते हैं? आम लोग वो उनका ही दोष है, क्योंकि उन लोगों को पता क्यों नहीं है, जो मीन्स लगाना चाहता है झगड़ा ऐसा, उन लोगों को तो मीन्स समझना चाहिए कि एक साथ रहना चाहिए। क्यों वो लोग किसी के बहकाने से लड़ने और झगड़ने पे लग जाते हैं? तो दोस्तों उन तो लोग यहाँ पे ये जो लोग, ये तो एकदम आम लोग हैं जिनके साथ काफी एनजीओ लोगों ने काम किया है, वो किया है, उसके बाद भी ऐसा झगड़ा कर रहे हैं। इतना ये लोग शांति के लिए खुद कर रहे हैं, लेकिन इनके मन में ही शांति नहीं है, तो कहाँ से आएगा शांति? मन में शांति नहीं है मतलब इन लोगों के मन में अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हमें एक साथ रहना चाहिए, हम सब हिंदुस्तानी है, मीन्स अलग धर्म कुछ भी नहीं है, भेदभाव नहीं है। इन लोगों को अपने खुद में ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसका। तो आप लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं, जो त्रिपुरा में जो टेंशन है, कौन सी टेंशन है? हमारे त्रिपुरा में भी ऐसा ही कुछ। कौन सा टेंशन है? हिंदू मुसलमान का टेंशन है? हिंदू मुसलमान का नहीं है, लेकिन वो जाति व्यवस्था का अलग अलग जातियों के बीच में है, तो वो ऐसा ही है। वो जो आप लोग का जो गुजरात में जो है और यहाँ पे जो है वो एक नहीं है, यहाँ पे कुछ अलग ही है। हाँ, अलग वही बोल रहा है। हाँ। अलग जैसे जो बाहर देश से जो आया था यहाँ पे आके, वो पहले तो जो त्रिपुरा में रहता था वो लोग बहुत सिंपल था। हाँ। सिंपल मीन्स जो गांव में रहता था सीधा साधा था, मगर बाहर देश से मतलब बांग्लादेश से और पश्चिम बंगाल से जो आने के बाद वो रोल करने लगा उस पे। जो पहले जगह मांगा ऐसे ही रहने के लिए, फर्स्ट से एग्जाम्पल रहने के लिए जगह दिया, बैठने के लिए, उसके बाद सोने के लिए मांगा, उसके बाद थोड़ा कुछ दिन रहने के लिए, उसके बाद पूरा मास्क ऐसे रहते उन लोग बाद में रोल कर लिया। इससे विश्वासघात जैसा कुछ ऐसा ही कर लिया। उग्रवादी और ये त्रिपुरा की जो उग्रवादी वो बहुत डिफरेंस है।
कोई एक है जो एक कुछ घटना हो गया, कुछ होने के बाद भी घटना जो घटना करने वाला वो तो भाग गया, जो गांव में सीधा सा रह गया, पुलिस जाके डायरेक्ट उसको कुछ भी नहीं कर टॉर्चर करते और मारती है। और अभी भी इस करंट ईयर में कुछ महीने ये अभी न्यूज़ में देखो तो एक एनकाउंटर पे मारा गया बोलेगा। कौन मारा गया? कोई भी उग्रवादी तो हम लोग जैसे चेहरा वाले को उग्रवादी बनाते हैं। जो इस त्रिपुरा का जो आदिवासी है उसको टेररिस्ट बना दिया गया है। हसमुख और मुबस्सिर के बीच झगड़ा हो गया और ये लोग बोल रहे थे कि वो बोल रहा है कि हिंदू करते हैं झगड़ा, वो बोल रहा है कि मुस्लिम करते हैं झगड़ा, वो बोलता है कि हिंदू की सब गलती होती, वो बोलता है मुस्लिम की सब गलती होती। तो भले ही हिंदू की गलती हो या मुस्लिम की गलती हो, कहीं कहीं जगह झगड़े फिसाद होते रहते हैं हिंदू मुस्लिम में, तो वो चल रहे हैं। तो हम क्या करने आए यहाँ पे? हम क्या झगड़ा करने आए या शांति फैलाने आए? अगर वो झगड़े कहीं कहीं चलते हैं, हाँ अगर हसमुख मान रहा है कि मुसलमान की सब गलती होती तो कोई बात नहीं, मुसलमान की सब गलती होती, मैं भी मान रही हूँ मुसलमान की गलती होती। और अगर मुबस्सिर मान रहा है कि हिंदू की सब गलती होती तो कोई बात नहीं, हिंदू की सब गलती होती। लेकिन जहाँ पे ये चल रहा है वहाँ पे चलने दो। हम तो हिंदू मुस्लिम सब मिल के कुछ कर सकते हैं ना। अगर हम आपस में झगड़ेंगे तो फिर सब पूरे देश में जो हिंदू मुस्लिम है वो सब कैसे एक होंगे? अगर जहाँ पे चल रही है लड़ाई झगड़े वहाँ पे चलने दो। हम जैसे एक बहुत बोलते हैं कि कण कण करते ही मन होता है, तो एक एक मिल के एक हिंदू एक मुस्लिम मिलेंगे, अच्छी तरह से दोस्त होंगे तो दूसरे हिंदू मुस्लिम को मिलाएंगे, वो मिलेंगे तब दूसरे होंगे, धीरे धीरे शांति फैलाएंगे। अगर तुम भी झगड़ोगे तो फिर पूरे देश के हिंदू मुस्लिम का क्या होगा? पहले वो जो अंदर के भावना है उसको हटाना पड़ेगा, उसको साफ करना पड़ेगा। उसके बाद फिर अपने परिवार में अपने दोस्तों के बीच एकदम जिनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं उसमें वो भावना फैलानी पड़ेगी, उन लोगों के साथ बातचीत करनी पड़ेगी। फिर जब अपना फैमिली में मैं देखूंगा कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ या ऐसे नहीं सोच रहा हूँ, उसके बाद ही हम लोग राज्य के बारे में या पूरा देश के बारे में वहां पे सोचना शुरू कर सकते हैं। बोल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके सब कोई हम लोग एक साथ जुड़ के काम कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत अपने आप से करना। अभी मैं चाहूंगा कि हसमुख और आप यहाँ पे एक बार आए और सबके सामने गले मिले और मेरे को ये मौका दे और मेरे को ये बोलने का मौका दे कि इन लोगों ने जो किया वो एक नाटक था, किसी को पता नहीं था और इन लोगों में कोई झगड़ा नहीं है। और मैं दोस्तों को कहना चाहता हूँ कि मेरे जुबान से कोई गलत शब्द निकल गया हो तो माफ कीजिएगा। शांति हमको चाहिए, देश और समाज की उन्नति के लिए शांति हमको चाहिए, शांति हमको चाहिए, देश और समाज की उन्नति के लिए शांति हमको चाहिए, शांति हमको चाहिए। They learn each other's songs slowly, started to bid goodbye to the new friends. हमें बहुत अच्छा लगा आप लोग आए हमारे यहाँ और ऐसे घुल मिल गए हैं हम लोग। हमें भी ऐसा लगा कि आप लोगों से हमारा पहचान एक दिन का नहीं है, जैसे वर्षों से हम आप लोगों को जानते हैं। ऐसा I feel very happy that all of you have come from Rajasthan and Gujarat could enjoy every moment here in the mountains. Why so
हाँ